hard work, he has grown the business to becoming the first major textile exporter based out of Ichakaranji. Over the last 7-8 years, the business has grown almost 20-fold, and today the company he heads is Ken Enterprises Private Limited. He has also promoted the region's most modern, fully compliant garment manufacturing unit in Ichakaranji. His craving for excellence has bagged him the prestigious TexProsil Award for the highest grade exports from India for the financial year 16, 19, 20 and 21. And also the highest employment generation in the MSME sector for the financial year 19 and financial year 20. Within 7 years of starting exports, the company has a marketing presence in over 20 countries worldwide. He is also a guest lecturer at DKT's Textile and Engineering Institute, Ichakaranji, and is actively involved in voluntary mentoring activities. Presently, he is also the chairman of the Fabric Subcommittee at TexProsil. He also holds Guinness World Record in a group event held at Koh Tao, Thailand in 2016 for the longest underwater human chain. I now request Nikunj Bagadia sir to give his thoughts and share here. We have to make the most use of the technical expertise of Sen साहब जो यहाँ पे ऊस्टर से आए हैं. अपना पर्पस ये है कि जो स्पिनिंग में टेस्टिंग पैरामीटर्स ये लोग बताते हैं उसका हमारे वीविंग पे कैसे इम्पैक्ट होता है और वो टेस्ट पैरामीटर्स को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बेटर एफिशिएंसी, बेटर वर्किंग. सो दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस सेशन. आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, आई सी अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स हियर, काफ़ी पूरी हमारी इचलकरंजी की वीविंग कम्युनिटी है. सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग के मन में जो भी डाउट्स होंगे प्लीज फील फ्री टू क्वेश्चन सेन सर. ही इज फ्रॉम ऊस्टर. आज के तारीख में दुनिया में स्पिनिंग के सब पैरामीटर्स ऊस्टर डिसाइड करता है. सब लोग बोलते हैं ये ऊस्टर रिपोर्ट है, तो अपने को जो भी प्रॉब्लम है ना सांप को पकड़ना है, अपने को इनको छोड़ना नहीं है. ओवर टू यू सर. Now we have Mr. Sandeep Sen sir, a person of immense personality and great knowledge bearer. He has completed his BE from Nagpur Yashwantrao Sawan College of Engineering in Electronics. He started his career as an electronic supervisor at GTN Industries. He has associated with Ooster in 1997 and was placed in Kolhapur, taking care of services in Western Maharashtra till 2012. In 2012, he undertook additional responsibilities of textile technologies to his portfolio. He is now exclusively working in textile technology department and handles the affair of daily basis efficiently. We welcome you, sir. I'm sure we have a lot to take away from this session. Ichilkaranji Shuttleless Fabric Manufacturer Association to giving us this opportunity, because I think I will shift to Hindi, right? We are used to it always. Whenever we go for a symposium or seminar, English में बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन no problem. अपने राष्ट्रभाषा में बात करें या तो मराठी में बात करें, मला काही प्रॉब्लेम नाही. कारण मी 25 वर्ष कोल्हापूरमध्ये काढले, तर एकदम थेट कोल्हापुरी बोलता येते मला. सो आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछना है, लेट इट बी हिंदी और मराठी, फाइन, नो प्रॉब्लम फॉर मी, राइट. एंड अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद टू द ऑर्गेनाइजर्स कि उन्होंने हमको यहाँ पे एक ओपनिंग दिया है. बेसिकली स्पिनिंग इंडस्ट्रीज ऊस्टर ऑलरेडी, आई मीन इट इज एस्टैब्लिश्ड. मोस्ट ऑफ द स्पिनिंग मिल जो भी है यहाँ पे, राइट फ्रॉम आई थिंक आई हैव विजिटेड आईको, आई हैव विजिटेड, वी हैव इंस्ट्रूमेंट इन आईको, देन नव महाराष्ट्र, सभी जगह हमारे इंस्ट्रूमेंट्स रह चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं जहाँ भी ये सब आ रहे हैं. सो स्पिनिंग मिल्स ओके, बट वीविंग में बहुत पेनिट्रेशन उतना नहीं है. एक्सेप्ट कोल्हापुर में अगर देखेंगे तो इट्स रेमंड्स, मॉन्टी, देन ग्रासिम, सो वेरी फ्यू. बट एनी हाउ आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर आप लोग के लिए भी, कि जो भी पैरामीटर्स है हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे आज. एंड लेट्स स्टार्ट विथ इट. I was just waiting for, excuse me, we have a caller mic? Yeah. So मुझे थोड़ा घूमना पसंद है,
खड़े खड़े रह के मैं थोड़ा सा बोर हो जाऊंगा, तो वीविंग के लिए तो सबसे पहला हेडेक तो ये आता है कि भाई चल नहीं रहा है, ब्रेकेजेस आ रहे हैं, ये सबसे मेन ये आता है, और जो स्पिनिंग से आ रहा है मतलब। सो हमें पता करना है कि यार्न स्ट्रेंथ। सो लेट्स सी, तो हम लोग टेंसाइल टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ इवननेस टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द टेस्ट रिजल्ट्स। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्टली आपका क्या होता है कि आप टेस्ट करवाते हो या तो स्पिनिंग मिल आपको कोई टेस्ट रिजल्ट देता है एंड देन आप कंपेयर करते हो इसको और ये मैच नहीं होते, एंड देन देयर इज ऑलवेज एक डिस्प्यूट रहता है कि भाई आपने ये दिया है, मेरे यहाँ पे ये आ रहा है। तो ये फैक्टर्स क्या इफेक्ट कर रहे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और क्लासीमेट भी है हमारे पास, जो क्लासीमेट मतलब उसमें भी डिस्प्यूट्स रहते हैं। न्यू जनरेशन ऑफ क्लासीमेट है, ओल्ड जनरेशन ऑफ क्लासीमेट है, तो ये भी इसको कैसे अंडरस्टैंड करें। और एट द एंड बूस्टर स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूँगा आप लोगों को। सो लेट्स बिगिन विद टेंसाइल टेस्ट पैरामीटर्स। Just take out and put that black one, yeah. Yes. ठीक है। ओके, सो सबसे पहले टेंसाइल टेस्टिंग की अगर बात करें तो मोस्टली आप लोग CSP सिस्टम के साथ ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड बट बूस्टर के पास आएंगे तो हम लोग तो बोलेंगे सिंगल यार्न स्ट्रेंथ टेस्टर। हम बोलेंगे CSP ओके, अगर इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग देन प्रॉब्ली CSP इज द बेस्ट। कुछ नहीं तो CSP ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू सी डीपर देन सिंगल यार्न स्ट्रेंथ टेस्टर कम्स इनटू द पिक्चर। अब सिंगल यार्न स्ट्रेंथ टेस्टर में दो टाइप के हैं हमारे पास। एक है हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट। आई मीन हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट अगर बोलूँ तो अभी आप मतलब कॉटन में चले जाएंगे HVI। इट्स नॉट दैट HVI, व्हाट वी आर टॉकिंग इज हाई टेस्टिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट हो सकता है। सो दैट इज आवर टेंसोजेट, ये जो है आपका। सो दो जो है UTR और एक है UTJ। सो ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं हम लोग एक बार। कंपैरिजन अगर देखेंगे, बेसिकली पैरामीटर्स आर मोस्टली दोनों में सेम है। सो दोनों में आप देखेंगे स्ट्रेंथ मिल रहा है, टेनासिटी मिल रहा है, एलोंगेशंस मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है। सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा है टेंसोजेट में, दैट इज आइसोलेटेड वीक प्लेसेस। और ये है आपके लिए जो वीवर्स है, इनके लिए ये सबसे बड़ा हेडेक है, जो आपको टेंसो रैपिड में नहीं मिलेगा, जो टेंसोजेट से ही मिल सकता है। बट वी हैव टू सी टेंसोजेट ऑल्सो इज नॉट दैट सभी चीज़ में चल जाएगा। सो टेंसोजेट में मतलब क्या क्या मटेरियल्स है, क्या मतलब व्हाट आर द थिंग्स वी कैन टेस्ट इन टेंसोजेट, ये भी देखना जरूरी है। सो लेट्स सी दैट मच मोर डीपर। सो द मेजरमेंट प्रिंसिपल, दोनों के प्रिंसिपल CRE है, ये कांस्टेंट रेट ऑफ एलोंगेशन। I think we wait for some time. Let's stream it out, huh? Hello. Okay. Fine. Thank you. Yes. Thanks a lot. So, material application. Tenso Rapid, Tenso Jet. Tenso Rapid, it's for all staple yarn. ये universal है. आप you name it, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं. But Tenso Jet, इसमें I mean Tenso Jet is only for staple yarn,
बट टेंसो रैपिड इज यूनिवर्सल, जिसमें आप स्टेपल प्लाई, परफॉर्मेंस कोर, फिलामेंट यार्न, फैब्रिक टेस्टिंग, ये सब टेंसो रैपिड में कर सकते हैं. बट टेंसो जेट इज ओनली फॉर स्टेपल यार्न्स. Then you have a count range. You can see the count range for Tenso Rapid. It is unlimited, whereas Tenso Jet में आपका 4 से so mostly it is covering the whole count range what you are weaving. I think testing speed ये बहुत important factor है. So आप अगर देखेंगे Tenso Jet में testing speed between 200 to 400 meters per minute, whereas your Tenso Rapid is only 5 meters per minute. You see the difference now. मतलब एक इंस्ट्रूमेंट आपका 400 मीटर पर मिनट पे चलता है और एक 5 मीटर मिनट पे चलता है. So that will make the difference. आप जो सैम्पलिंग कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, इससे डिफरेंस होने वाला है. That's what it is giving maximum testing throughput is you with Tenso Jet you can test 30,000 tests per hour. That means 30,000 breakages आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इंड्यूस कर सकते हो इसमें. Whereas for Tenso Rapid it is only 740. Now you understand in weaving आपके breakages कितने रहते हैं? In 1 lakh मीटर में बात करते हैं हम लोग और वेरी फ्यू ब्रेकेजेस रहते हैं. सो Tenso Rapid में अगर आप करोगे तो उतना सैंपल टेस्ट भी नहीं कर पाओगे कि आपको पता चलेगा वीक प्लेसेस का. देन टेस्ट लेंथ है. टेस्ट लेंथ इसमें 500 Tenso Jet में फिक्स्ड है, यू कैन नॉट चेंज इट. बट Tenso Rapid ऑफ कोर्स यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी. अगेन द ब्रेकिंग फोर्स इसमें अप टू 30 न्यूटन सिर्फ है. बट Tenso Rapid यू सी यू कैन गो, आई मीन यू हैव टू ऑप्ट 500 न्यूटन का लोड सेल लेना है या 1500 न्यूटन का लोड सेल लेना है, तो ये आप डिसाइड करना पड़ता है. देन एलोंगेशन अगर देखेंगे, सो द एलोंगेशन इज अप टू 30% इसमें क्या बोलते हैं Tenso Jet में, whereas Tenso Rapid में it is up to 1000%. That means अगर फिलामेंट यार्न भी चेक करना है so Tenso Jet में ही कर सकते हैं, Tenso Rapid में नहीं कर पाएंगे आप लोग. Okay, so what are the basic parameters जो हमको टेंसाइल टेस्टिंग में मिल रहा है, irrespective of Tenso Rapid और Tenso Jet? ये बंद है ना? Hello, yeah. Okay, what are the basic tensile parameters? So, if you see this, आपका अगर Tenso Rapid है, Tenso Jet है, सभी में यही रिपोर्ट्स आने वाले हैं. So, basic measurement जो है हमारा, वो है ब्रेकिंग फोर्स. ये एक्चुअल हम मेजर कर रहे हैं. देन द एलोंगेशन, मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ इसमें बिकॉज आई थिंक इट इज नॉट रिक्वायर्ड, एवरीबडी नोज. एंड देन वी हैव टेनासिटी और आरकेएम. आई थिंक मोस्ट प्रेवलेंट इज आरकेएम. हम लोग आरकेएम से आइडेंटिफाई करते हैं. सो इट इज अप टू यू, आप टेनासिटी देखना है या आरकेएम. दे आर मोर और लेस वेरी क्लोज बाय. दोनों का रिलेशन 0.9 का आसपास कुछ है सर. सो दिस इज कैलकुलेटेड. दैट मीन्स टेनासिटी एंड वर्क डन, ये दोनों आर कैलकुलेटेड. दिस आर नॉट मेजर्ड वैल्यू. सो टेनासिटी विल कम, यू नो द ब्रेकिंग फोर्स आपको कितना है और काउंट आप डाल रहे हो तो उसमें से आरकेएम और ये तो टेनासिटी वैल्यू आ जानी है. अब व्हाट इज वर्क डन? ये वर्क डन जो है ये मोस्टली अनयूज्ड है. आई मीन कोई यूज नहीं करता है. मैक्सिमम केसेस वेरी फ्यू पीपल आर रियली यूजिंग आउट ऑफ इट. नाउ अगर हम फिजिक्स पे चले जाए हमारे, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? इट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस इट हैज ट्रैवल्ड. फॉर एग्जांपल ये एक मटेरियल रखा हुआ है, इसको अगर मुझे शिफ्ट करना है तो आई विल पुट अप फोर्स. तो कितना फोर्स लगा वो पता चल गया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो इससे मुझे इसका वर्क डन पता चल रहा है. सो दिस इज द वर्क डन. नाउ हाउ वी कैन इंटरप्रेट इन आवर वीविंग वी विल सी इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. ओके, देन कमिंग टू दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स. इसके बाद देयर आर सम पैरामीटर्स व्हिच वी कॉल टेबल बॉटम, जो कि आपका नीचे में आता है. ओके, दीज आर जस्ट द डेफिनेशंस. ओके, सो ये है एक फोर्स एलोंगेशन कर्व. आप एक ब्रेकेज ले लीजिए, सिंगल यार्न को आपने ब्रेक लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ Tenso Rapid और Tenso Jet. सो समहाउ दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक. सो आपका यहाँ पे y एक्सिस में फोर्स हो गया और इधर x एक्सिस में एलोंगेशन हो गया. नाउ you see the definition of braking force is the maximum force applied जो है, and at that point what is the elongation? That is your braking elongation. Now this area is termed as work done to brake.
नाउ ये बात जो है ये कोई गारंटीड नहीं है हर बार ऐसे ही चलने वाला है। आप तो फोर्स निकाल रहे हो, फोर्स मतलब फोर्स में से आप टेनासिटी निकालोगे, आरकेएम निकालोगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस वैल्यू। सो यू मे हैव अ कर्व जो कि आपका ऐसा जा रहा है, लेट्स सी नीचे से जा रहा है और यहाँ जाके यहाँ पे आ गया, तो आरकेएम तो आपको वही मिल गया जो मिलना था और दूसरा कुछ मिला नहीं आपको, एंड यू विल हैप्पी, वेरी हैप्पी। बट वर्क डन क्या रहेगा उसका? वर्क डन कम रहने वाला है, बिकॉज इसका एरिया कम हो गया। हम जब यहाँ से जा रहे हैं तो इसका एरिया कम हो गया। दैट मीन्स अगर सेम यान इसका अगर ऐसा कर्व जा रहा है तो वर्क डन ज़्यादा है। दैट मीन्स दिस यान ओके इसका आरकेएम इतना आ रहा है, 20 आरकेएम आ गया, बट वर्क डन अगर इससे भी ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स इसमें फोर्स को मतलब लोडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। सो दिस विल वर्क वेरी वेल इन योर नेक्स्ट प्रोसेस, जैसा वीविंग या वार्पिंग में ये रियली इसके काम कर पाएगा ये। सो दैट इज वाई इस पे भी हमने ध्यान देना चाहिए वर्क डन कितना है। सो यू विल गेट सम डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन, इसमें से आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन आएगा कि ये यान अच्छा है। मुझे अगर कंपेयर करना है दो यान के बीच में, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पुराने स्लाइड में जाता हूँ, यू सी वर्क डन इज 746 सेंटीन्यूटन सेंटीमीटर। सेम you had same tenacity of 16.35, ये 746 है और दूसरा अगर 775 आ रहा है, so which one I will go for it? जिसमें वर्क डन ज़्यादा है I will prefer that because I know now ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा नेक्स्ट स्टेज में आपका। फाइन, ओके। नाउ कमिंग टू द बॉटम, जो नीचे में आपका मतलब पहला तो आपका आ गया फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स, एलोंगेशंस और उसके बाद टेनासिटी एंड वर्क डन। उसके बाद नीचे का जो टेबल होता है उसको हम लोग टेबल बॉटम बोलते हैं। इसमें बहुत कुछ है। सबसे पहले तो आता है मीन वैल्यू। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन मीन वैल्यू क्या है, एवरीबडी नोज व्हाट इज मीन वैल्यू, एवरीबडी नोज स्टैंडर्ड डिविएशन एंड सीवी, दीज आर स्टैटिस्टिकल वैल्यूज, ओके। बट इम्पोर्टेंस, सीवी का इम्पोर्टेंस है Q95, we will discuss one by one. Q95, then Worcester UTR expected, and then percentile value. ये I think हम जब भी कोई बिल में जाते हैं तो ये percentile value के बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, what is this percentile value? So इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। So सबसे पहले CV, this is a very important, it is not good enough that मेरा ब्रेकिंग फोर्स और आरकेएम वैल्यू बढ़िया है। लेट्स से मेरा ब्रेकिंग फोर्स आरकेएम 20 है और एक 18 है, सो आई एम वेरी हैप्पी, जो 20 है उसी से साथ जाना चाहिए। बट आई हैव टू सी द सीवी ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर टेंसो जेट में आई एम टेस्टिंग 1000 ब्रेक्स, सो 1000 ब्रेक्स का आपका मीन वैल्यू 20 आ गया आरकेएम, बट सीवी अगर 12% है, दैट मीन्स पूरा फैला हुआ है, हम बोलेंगे रायता फैल चुका है। और वहीं अगर तो ये आता है कि आपका सीवी वैल्यू 8% है, तो बहुत ही मतलब आपका उसमें वेरिएशंस बहुत कम है। एंड टेक्सटाइल में आपको मालूम है व्हाट इज क्वालिटी, अगर कुछ बोलेंगे जो भी दे रहे हो कंसिस्टेंट दो, इट्स नॉट दैट आपको एकदम हाई क्वालिटी देना है, कंसिस्टेंट दो, सो दैट आप सेटिंग आपका प्रोसेस सेट कर सके, आपको ब्रेकेज मतलब स्टॉपेजेस ना आए और स्ट्रीमलाइन चल सके। सो सीवी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको मतलब ओनली मीन वैल्यू देख के हमें कुछ मतलब पूरा डेटा मिलता नहीं है, सीवी देखना बहुत जरूरी है, राइट। देन कम्स Q95. Let me go to the next slide. I will talk about Q95. अब मैक्सिमम केसेस क्या होता है, टेंसो रैपिड में जो स्पिनर है उसने टेस्ट किया एंड टेस्ट करके रिपोर्ट दे दिया, इट गोज टू द वीवर. वीवर also has some definitely some testing facilities, or he may get it tested from somewhere else, and he gives the report, and then we say मैच नहीं हो रहा है, एंड देन द डिस्प्यूट चालू होता है कि भाई आपने जो बताया, आपने तो ज़्यादा बताया, मुझे तो कम आ रहा है। सो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है आपके यान में वेरिएशंस क्या है, बिकॉज आफ्टर ऑल नेचुरल ये है, कॉटन अगर बोल रहे हो तो नेचुरल कॉटन है, इसमें इस वेरिएशंस रहने वाले हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड इसका वेरिएशंस क्या है, और वो वेरिएशन रिफ्लेक्ट करेगा आपके यान में। सो इट्स नॉट दैट कि मेरा इम्परफेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ मेरा इम्परफेक्शन आ रहा है 30 आ रहा है, चलो नेक्स्ट 200% 30 आ रहा है पर किलोमीटर, कोई गारंटी दे सकता है हर बार टेस्ट करूँगा 30 ही आएगा? Nobody will give guarantee. It can go to 35, it can go to 40 also. So here
here comes the Q95. What it means? It means confidence limit. That means if you test 100 times, so 95 times your result will lie between certain value. For example, अगर NEPS अगर आपका है 30 और Q95 बता रहा है 5, that means आप ये मटेरियल को अगर आप 100 बार चेक करोगे तो 95 टाइम्स आपका imperfection will lie 30 plus minus 5. That means 25 to 35 आपका रेंज है. ये आपको 100 बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार टेस्ट करके, और ये स्टैटिस्टिकल वैल्यू, ये उस तरह कुछ नहीं है. सभी इंडस्ट्रीज Q95, Q99, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ये स्टैटिस्टिकल वैल्यू यूज करती है टू फाइंड आउट कि हमारे इंटरनल वेरिएशंस क्या है उसमें. सो दिस इज व्हाट. तो अब ये हम अपने इस पे कैसे यूज कर रहे हैं? एक तो डिस्प्यूट्स रोकने के लिए, दूसरी बात हमें समझ जाए कि ये जो डिविएशंस आ रहे हैं, ये डिविएशंस अगर हम देख ले हमारे डिविएशंस के अंदर है तो हम लोग समझे नहीं, वी डोंट हैव टू अननेसेसरली गो और इसको कंप्लेन करके कहीं सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे ना करें. सो लेट्स सी, ये एक एग्जांपल है, ये दो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके हिस्टोग्राम्स है. तो यहाँ पे आपका एक x1 मीन वैल्यू आया हुआ है और ये x2. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये दोनों बोलते हैं अरे ये लेट्स से ये 19 RPM है और ये 18 RPM है, और हम वी स्टार्ट फाइटिंग, नहीं एक RPM कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मशीन ठीक नहीं है, या तो आप बोलोगे आपने टेस्टिंग सही नहीं किया. वी हैव टू थिंक अबाउट द Q95 ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, टू मेक इट ईजी, अगर मैं Q95 1 बोल दूँ RPM का, उतना नहीं रहेगा, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए. तो क्या हो जाएगा, अगर ये 18 है और ये 19 है, सो मतलब प्लस 1 19 भी हो गया, 17 भी हो गया, और सिमिलरली यहाँ पे 19 है, 18 भी हो गया और 19 भी हो गया. सो नाउ इफ दे आर ओवरलैपिंग देन वी से इनसिग्निफिकेंट, स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट. बट अब यहाँ जो केस दिख रहा है, ओवरलैपिंग है क्या? सो ओवरलैपिंग नहीं है, दैट मीन्स द वैल्यूज जो आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट है. वी हैव टू गो एंड अंदर जाके देखना चाहिए. तो ये स्पिनिंग के लिए यूज करने का तरीका अलग है. स्पिनिंग में क्या है, मशीन टू मशीन वेरिएशंस कितना है. अब मशीन टू मशीन में अगर ओवरलैपिंग हो जाए, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड इफ आई शो यू, यहाँ अगर दिखाऊं तो आप ये देखिए डिफरेंस इज इनसिग्निफिकेंट. ये ओवरलैपिंग है, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना अच्छा है. एकदम एच पे आ गया तो आई विल सी नहीं एच पे है, थोड़ा बहुत देखना चाहिए हमने. और ऊपर जैसे आ गया, फर्स्ट केस जो दिख रहा है ग्रीन में, डिफरेंस सिग्निफिकेंट, देन हाँ आपके रिजल्ट्स दोनों अलग आ रहे हैं. तो वी हैव टू सी. अब इसमें भी और भी एक फैक्टर आ जाता है. इफ आई एम टेस्टिंग बिटवीन 2 लेबोरेटरीज, मतलब आई एम टेस्टेड इन स्पिनिंग और वीविंग के पास भी टेंसाइल टेस्टिंग है, दोनों ने टेस्ट कर लिया और दोनों के रिजल्ट इतना दूर आ गया. इसमें लैब कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट प्ले करता है. बिल्कुल, इसको हम टच करेंगे नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स पे, क्योंकि मशीन टू मशीन अंदर लैब का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है. इट्स नॉट जस्ट हम बस कहीं भी टेस्ट कर ले और रिजल्ट आ जाएगा. मॉइस्चर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरिएशंस भी आता है, तो उसको हम लोग डेल्टा टी बोलते हैं. तो इसमें डेल्टा टी और ऐड हो जाता है दोनों साइड में, तो ये और बैंड बढ़ जाता है. उसके बाद फिर हम सोचते हैं क्या डिफरेंस है कि नहीं. So these things one has to think before taking a call whether there is a difference there or not. Next is TensoJet में एक आता है ऑप्शन UTR expected values. मतलब as I said, TensoJet it works at 400 meters per minute. So it's a high speed testing instrument. तो इतना हाई स्पीड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट में डू यू थिंक द रिजल्ट विल मैच टेंसाइल टेस्टिंग और टेंसोजेट टेस्टिंग का? किसका ज्यादा आता है? कुछ आइडिया मोस्ट आई थिंक मेनी पीपल माइट बी नोइंग टेंसोजेट का रिजल्ट्स कम आता है टेंसो रैपिड से. व्हाट डू यू से? एनी आइडिया which is giving? For example, same, yeah, let's say 30 is compact weaving I am testing, and which instrument will give a higher tensile strength? TensoJet. What is the reason behind it? Speed.
And now why speed is creating this problem, मतलब deviation, because हम बोलेंगे force तो से मतलब strength तो सेम ही आना चाहिए, but it's not. What is the definition of मतलब force का? Mass into acceleration. आप एक ऐसा मैं very simple example देता हूँ किसी को, अगर आप धीरे से ऐसा मारोगे कुछ नहीं लगेगा. कार में जा रहे हो आप 80 के स्पीड से, हाथ बाहर निकाल के रखो और किसी के गाल पे मार के जाओ, what will be the impact? And the impact is because of the speed. So because of the speed, TensoJet में आपके values जो आने वाले हैं, it will be always on the higher side. It will be around, we cannot generalize, 8 to 12% आपका बढ़ जाता है. So the results match करने के लिए बहुत ही रहते हैं, क्योंकि कोई किसी के पास टेंसो रैपिड रहता है और कोई TensoJet में टेस्ट करके देता है, तो उसको वो बोलता है अरे आपने TensoJet, मेरा टेंसो रैपिड का रिजल्ट क्या आएगा, वो मांग सकता है. So in TensoJet we are giving this UTR expected values. If you test in TensoJet, तो UTR expected में क्या आएगा? So what we use, हम यहाँ पे ये UTR का डेटा है आपका. So UTR का डेटा में हम लोग देख लेते हैं आपका उसका स्टैटिस्टिक यूज करके हम लोग इसका निकालते हैं. जैसा फॉर एग्जांपल ये 52 परसेंटाइल आया हुआ है उसका स्टैटिस्टिक्स में. So 52 परसेंटाइल में TensoJet में क्या वैल्यू आएगा वो यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं. So that is how we give this expected values. If at all you are using TensoJet, अगर यूज कर रहे हैं आप तो ये आपको expected values मिल रहा है आपको. Then let's come to the percentile value. ये अगर आप एक टेस्ट रिपोर्ट देखेंगे TensoJet का, so ये देखिए आपका पूरा नीचे में मतलब बॉटम टेबल में you have so many values coming out. इसमें आप देखोगे तो मीन वैल्यू है, CV है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, Q95 है, then UTR expected, minimum, maximum, median, then you have this percentile values. P 0.01, 0.1, 1%, 5, ये percentile values है. So इससे आपको क्या बेनिफिट आता है? This is a scatter plot of your TensoJet. यहाँ अगर देखोगे so ये फोर्स एलोंगेशन का आपका एक स्कैटर प्लॉट बना के दिखाता है कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है आपका. और द परसेंटाइल वैल्यू जो है, दिस कोरिलेट्स वेरी वेल विथ, इफ आई शो यू द नेक्स्ट स्लाइड, आई विल गो बैक आई थिंक एंड आई विल कम बैक. यस, सो रिसर्च हैज शोन दैट percentile P 0.01 percentile value and weft specific end breaks in weaving mills are quite good. मतलब यहाँ जो वैल्यू आती है ये आपके वेफ्ट की जो ब्रेकेजेस आती है इससे बहुत अच्छा कोरिलेट करता है. एक याद रखिए आपका वेफ्ट इंसर्शन जो रहता है ना वो कितना मिली सेकेंड रहता है, अराउंड 3 मिली सेकेंड्स कुछ रहता है. एंड दैट्स व्हाट हम TensoJet पे भी कर रहे हैं. TensoJet में जो हम यार्न पे जो स्ट्रेस दे रहे हैं वो 3 मिली सेकेंड के अंदर हम लोग सब कर रहे हैं. सो दैट इज वाई ये एक बहुत रियलिस्टिक वैल्यू आती है. मतलब TensoRapid से ये वैल्यू नहीं मिलने वाली आपको, क्योंकि TensoRapid 5 मीटर्स पर मिनट में चलना है, ये 400 मीटर्स पर. तो इसमें वी आर सो इफ यू आर गेटिंग दिस वैल्यूज विच कोरिलेट वेरी वेल विथ योर वेफ्ट ब्रेकेजेस, तो अगेंस्ट दिस में आपके कितने कैसे क्या आ रहे परसेंटाइल वैल्यू उस पर डिपेंड करता है. सो लेट्स गो बैक एंड लेट मी एक्सप्लेन यू द परसेंटाइल वैल्यू हियर. नाउ you see over here the percentile value 0.01 and in the bracket you will see something. Okay, so we are testing, for example, in this case we have tested, for example, if you see we have tested over 1000 breaks. Okay, so 1000 breaks mein if I say percentile 0.01, that means 0.01% of 1000, ये कितना होता है? ये 1 होता है. so bracket में 1 दे दिया है. Then 0.1, 1000 का 0.1% is 10. So the bracket tells me how many breakages जो टेस्ट किया है उसके अगेंस्ट में आपका ब्रेकिंग फोर्स क्या है. So in this case, if you see 0.1, 10 breakages, that means breaks in 10,000 break test were 243.7 cm. मतलब आपका जो ब्रेकेजेस है 243 सेंटीन्यूटन के नीचे आपके पास 10 और है इवेंट्स. सिमिलरली अगर 0.01 का देखेंगे तो आपके पास एक ही है, बिकॉज एक क्यों है, आपने 10,000 टेस्ट किया. आप अगर उसको और बढ़ा दोगे, आप 10,000 का और 20,000 कर दोगे तो दैट फिगर विल चेंज.
देन इट विल टेल यू कि कितने इवेंट्स हो सकते हैं जो आपको प्रोबेबल वीक प्लेसेस हो गए। ये वीक प्लेसेस आपको पता चल सकता है कि कितना है। एंड दिस वैल्यू जो दिख रहा है 208.3 to 43.7, ये वैल्यूज आप जब दो टेस्ट मटेरियल में कंपेयर करोगे, इससे आपको ये होगा कि कौन सा यान अच्छा है। हम सिर्फ मीन वैल्यू के साथ नहीं जा सकते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सिर्फ मीन वैल्यू अगर अच्छा है दैट्स ओके, दैट इज नॉट, वी हैव टू सी हमारा परसेंटाइल क्या हो रहा है। सो इफ आई शो यू द नेक्स्ट स्लाइड, यस, लेट्स सी, यू हैव अ यान सैंपल ए एंड बी। अब इसमें से यान सैंपल ए का ब्रेकिंग फोर्स कितना है 328, यान बी का 310। सिर्फ यही देखेंगे तो मुझे क्या लगेगा कौन सा अच्छा है? यान, आई विल गो फॉर यान ए, बट आई विल ऑल्सो सी द सीवी। अब सीवी में कौन सा अच्छा है? इसका सीवी अच्छा है 8.25 कंपेयर्ड टू मार्जिनल, ज्यादा ऐसा फर्क नहीं है। देन लेट्स सी द परसेंटाइल वैल्यू। सो 0.01 अगर देखूंगा यान बी, इसका ज्यादा है, इसका कम है। सो ब्रेकेजेस किस पे मुझे कम मिलेगा? बिकॉज परसेंटाइल वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे। सो लाइक दिस इट हेल्प्स यू टू, ऑल्दो योर मीन वैल्यू इज हायर, आपका मीन वैल्यू हाई है, बट वीक प्लेसेस कितना है, क्या है? सो आइडिया ये है आपके जो ब्रेकिंग जो स्कैटर प्लॉट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब पूरा फैला हुआ है या एकदम से कॉम्पैक्ट हो रहा है। सो अगर कॉम्पैक्ट हो रहा है सो यू विल हैव दिस वैल्यूज हायर वैल्यूज, यू सी दिस वैल्यूज आर ऑल हायर। आई विल गो फॉर यान ए, यान बी। सो दिस हैज टू बी सीन कि हमें कौन सा, जस्ट बेस्ड ऑन मीन वैल्यू इट इज नॉट हेल्पिंग, हमें और भी अंदर देखना जरूरी है। फाइन, क्लियर? परसेंटाइल वैल्यू क्लियर? परसेंटाइल को और दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। 10,000 ब्रेक्स कर लिए हमने, ठीक है? 10,000 ब्रेक्स में फिर लोएस्ट से, सबसे लोएस्ट से, मतलब वो तो रैंडमली सब टेस्ट करेगा और वैल्यूज डाल देगा। लेट्स सी, पहला ब्रेकिंग फोर्स अभी जो दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे 328 आया, फर्स्ट 328 आया, सेकंड 350 आ सकता है, थर्ड 210 आ सकता है, यू डोंट नो। देन आफ्टर डूइंग इट आप असेंडिंग ऑर्डर में सबको ये कर दो। सो 10,000 आप जब असेंडिंग ऑर्डर कर दोगे और उसके बाद बोलेंगे कि 10% इसका मिनिमम कौन सा है, तो ऊपर के 10 जो है वो पॉइंट लेके बोल देंगे हाँ ये वैल्यू जो है, जैसा यहाँ पे आ रहा है लेट्स से 208। सो 208 और ये ब्रैकेट में अगर बोलेगा 10 इवेंट्स है ऐसे, सो 10 ब्रेकेजेस है जिसका ब्रेकिंग फोर्स 208 से नीचे है। और दूसरा यान भी अगर आता है मेरा जो 232 बोल देता है, सो आई एम बेटर। सो दैट इज हाउ वी कैन यूज दिस परसेंटाइल वैल्यू। फाइन, नाउ अभी जैसा यान जैसा रिक्वायरमेंट रहता है तो हम लोग यूजुअली बोलते हैं इतना आरकेएम चाहिए, और मेरे ख्याल से मोस्टली सीवी का भी ये रहता होगा कि इतना सीवी रहना चाहिए। सो बेसिकली हमारा लोड अप्लाइड इन वीविंग प्रोसेस एक हिस्टोग्राम रहेगा, दिस इज द मीन वैल्यू, उसका मिनिमम मैक्सिमम रहेगा। अगर हम प्लॉट करें, हेलो, अगर हम लोग प्लॉट करें तो ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ये दिस इज द लोड प्रोसेस्ड इन वीविंग। सो द यान आपने जो बनाना है ये अगर अच्छे से स्मूथली चलना है तो ये तो उससे बाहर रहना चाहिए। व्हाट हैपेंस इफ आई ब्रिंग अ यान, हेलो, इफ आई ब्रिंग अ यान जिसका फॉर एग्जांपल यहाँ पे रहेगा, वेरी गुड और बैड, व्हाट डू यू से? अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव अ बोर्ड, मुझे बहुत बोर्ड की आदत है, तो आई वुड ड्रॉ अ हिस्टोग्राम लाइक दिस, मतलब मेरा एवरेज वैल्यू इधर आ रहा है। इज इट गुड? फॉर वीवर ही विल से इट्स वेरी गुड फॉर हिम, बट फॉर स्पिनर वो उतना ब्रेकिंग फोर्स बढ़ाने के लिए उसने पीछे इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ाया होगा, ट्विस्ट बढ़ाया होगा, रिच मिक्सिंग डाला होगा, इट इज नॉट फिजिबल बिजनेस फॉर हिम। मतलब ज़्यादा देना भी इट्स नॉट गुड फॉर हिम, इट्स सेम फॉर एवरीवन। बट व्हाट हैपेंस if it is like this? Now you see this is the area of your yarn which have been made in spinning. मैक्सिमम तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप ये एरिया देख रहे हैं, आपका जो मैक्सिमम लोड वीविंग में देते हैं आप जितना देते हैं
ये क्रिटिकल एरिया है जहाँ पे आपका यान में मिनिमम भी आ सकता है. सो ये एरिया अगर इंटरसेक्ट कर रहा है आपके इसमें, यू विल हैव ब्रेकेजेस. सो डेफिनेटली यू विल हैव दिस काइंड ऑफ ब्रेकेजेस. सो यही जानना है कि ये कितना अंदर जा रहा है. सो आई डोंट नो वेदर वीवर्स में आपको ये मिलता है. डू यू नो आपको कितना फोर्स देना है? कुछ कैलकुलेशन रहता है. मेरे ख्याल से मशीन मैन्युफैक्चरर्स डेफिनेटली देते हैं कि ये पर्टिकुलर मटेरियल में कितना फोर्स देना है, क्या कितना सेंटीमीटर देना है आपको. तो इफ यू नो इट, hello, right. So this is one of the applications of TensoJet, जिसमें से हमको पता चलेगा कि आपका मतलब वीक प्लेसेस कितना आ सकता है. दिस इज हाउ इट लुक्स. आपका जब स्कैटर प्लॉट अगर देखोगे तो ऐसा दिख सकता है. एंड इसमें आप वीक प्लेसेस क्या आप भी डिज़ाइन कर सकते हो सेटिंग्स लगा के इस बीच में. सो ये मिनिमम मैक्सिमम आप लाइन ड्रॉ कर दो. इसमें से बाहर कुछ भी आएगा तो आपको वीक प्लेसेस मिल जाना है इसमें. आई थिंक आई विल दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ 4 डिफरेंट यान्स. इसको कंपेयर अगर करते हैं तो मतलब कौन सा यान लेना चाहिए हमें हमारे एप्लीकेशन के लिए. ऑफ कोर्स वी नो इट, हमारे इम्परफेक्शंस कम होने चाहिए, फोर्स कम होने चाहिए. सो यहाँ पे अगर देखेंगे यान 1 आपका टेनासिटी 20 है, यान 3 22 है, तो स्ट्रेट अवे आते हैं हम लोग 22 में आते हैं. यान 1 इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन. बट बाद में हम देख रहे हैं कि यान 2 3 और 4 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है. तो हम लोग फिर जो स्कैटर प्लॉट है उसको देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. इफ आई गो स्ट्रेट अवे, अब यहाँ स्कैटर प्लॉट अगर देखेंगे आप तो यान 3 में आप देख रहे हैं ये हमारा फॉरबिडन एरिया है. ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ये एकदम से बाहर आ रहा है. तो ये हेल्प करता है आपको पता करने के लिए कि हाँ इसमें मेरे ब्रेकेजेस कम आएंगे. सो दिस कैन वर्क स्मूथली इन माई वीविंग. दैट्स ऑल. इसमें एडवांटेज आएगा. नाउ इवननेस पैरामीटर में आप लोग क्या क्या मेजर करते हैं आप? मोस्टली यू परसेंटेज एंड इम्परफेक्शन हैरीनेस. ओके, सो ये आपका इवननेस टेस्टिंग, कोई भी आप इवननेस टेस्टिंग आपको यू मिलेगा, सीवीएम मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट द सीवी बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैब्रिक अपीयरेंस जो आता है आपका, अगर आपका सीवी ज़्यादा है सो फैब्रिक अच्छा नहीं दिखने वाला, क्लाउडी लुक आने वाला है आपका. मतलब फैब्रिक का जो अपीयरेंस आपका खराब होने वाला है. सिमिलरली CV 10 मीटर, इसके ऊपर भी बहुत कम ये रहता है. हम लोग को ये लगता है कि सिर्फ सीवीएम यू परसेंटेज देख लिया तो बस बहुत हो गया. बट CV 10 मीटर जो है ये लॉन्ग टर्म वेरिएशंस है. ये लॉन्ग टर्म वेरिएशंस हम नहीं देखोगे ना तो आपके जो फैब्रिक में पट्टे आते हैं ये आ सकते हैं. काउंट वेरिएशंस अगर पीछे से आ सकते हैं काउंट वेरिएशंस, तो ये काउंट वेरिएशंस आपको वहाँ पे दिख सकते हैं. सो ये CV 10 मीटर भी देखना बहुत ज़रूरी है. सो इफ़ आई शो यू द नेक्स्ट स्लाइड, कुछ मतलब पैरामीटर्स है. जैसा फॉर एग्जांपल इवननेस के लिए हम लोग यू परसेंटेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते. यू परसेंटेज एक ज़माने में हम लोग देखते थे, बट वी हैव मूव टू CV बिकॉज इट इज़ मोर, उसका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मतलब आप और इन डेप्थ दिखाता है. दैट्स वाई, बट वी नो इट, हम लोग यूज़ करते हैं 1.25 टाइम्स ऑफ यू परसेंटेज इज इक्वल टू CV, बट मोर और लेस आसपास ही आता है. सो व्हेन आई से CV दैट मीन इट इज़ यू परसेंटेज. सो फॉर रिंग स्पन यार्न एंड कॉम्पैक्ट यार्न, अगर आपका CV बिटवीन 2.5 या तो कॉम्पैक्ट में 2 के ऊपर जा रहा है तो आपकी फैब्रिक अपीयरेंस खराब. सो आपके पास अगर टेस्ट पैरामीटर आ रहा है इवननेस टेस्टिंग का, तो आप CV बिटवीन भी देखिए. जैसा हम लोग टेंसो रैपिड और टेंसो जेट की बात बोल रहे थे कि CV देखना है, वीक प्लेसेस के लिए परसेंटाइल वैल्यू देखना है, तो आपको ऐसा ही यहाँ पे CV बिटवीन भी देखना बहुत जरूरी है. सिमिलरली फॉर काउंट वेरिएशन, ऑफकोर्स काउंट CV सब देखते ही है. सो 1.8 फॉर रिंग स्पन एंड कॉम्पैक्ट इज 1.2%. इससे ज़्यादा अगर आता है इट कैन रिफ्लेक्ट इन द फैब्रिक. Similarly, that is for hairiness. So variation beyond this limit can be recognized in fabric.
सो अगर आपके टेस्ट रिपोर्ट्स इनके बीच में आ रहा है तो यू कैन, आई कैन नॉट से 100% गारंटी कि हाँ पूरा फैब्रिक, देयर आर और लॉट्स ऑफ अदर पैरामीटर्स ऑल्सो, बट एज पर स्पिनिंग से जो आ रहे इश्यूज इट कैन बी टेकन केयर ऑफ विद दिस. नाउ एज आई सेड, लॉन्ग टर्म एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट टर्म जैसा दिस इज, ये डायग्राम्स है, ये मास डायग्राम्स है. हम लोग मैक्सिमम सिर्फ वैल्यूज देखते हैं, डायग्राम्स नहीं देखते. सिर्फ सीवी देख लिया, डायग्राम नहीं देखते. बट डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. मतलब मैं बोलना चाहूँ तो बोलूँगा तस्वीर का दूसरा रूप. नॉट ऑलवेज आपको वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, सीवी आपका एक का 12% है और एक का 11% है. मैं क्या करूँगा, 11% yes, I will go for 11% without looking at the diagram. पता चला डायग्राम कुछ और ही दिखा रहा है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. बैकग्राउंड में डायग्राम अगर खराब है, आपका फैब्रिक अपीयरेंस खराब हो जाएगा. फॉर एग्जांपल ये लॉन्ग टर्म वेरिएशन है, ये लॉन्ग टर्म वेरिएशन अगर ज़्यादा है तो आपको लगेगा मैंने तो जान तो लिया था, सीवी तो बराबर था, मेरा यू परसेंटेज बराबर था, बट हमने 10 मीटर सीवी देखा नहीं है, 10 मीटर सीवी ज़्यादा है. सो इम्पॉर्टेंस किसको रहेगा, 10 मीटर सीवी को फर्स्ट इंपॉर्टेंस रहेगा, not the CVM. If I show you the example, you see this over here. यहाँ दो एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट वाला CV आ रहा है 11.13 और तीसरा वाला आ रहा है 11.67. ओके, नाउ लुक एट दिस, विच वन इज बेटर. अगर ये दोनों में देखेंगे, सो आई विल ऑलवेज गिव दिस वन 1.66. ऑफ कोर्स दिस इज मोर देन, मतलब ये U परसेंटेज है तो ये आपका U परसेंटेज ज़्यादा है, बट 10 मीटर CV कम है, तो मैं 10 मीटर CV जिसका कम है उसी को लूँगा, बिकॉज इससे मेरा फैब्रिक अपीयरेंस अच्छा आने वाला है. और एक आता है आई मीन डिविएशन रेट. ये जापानीज मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ये लोग बहुत यूज़ करते हैं. दिस DR परसेंटेज, मतलब जो मेरा मास डायग्राम है, कि मास डायग्राम कैसा वेरी हो रहा है. तो DR परसेंटेज अगर आपका कम आ रहा है तो इसके स्टैंडर्ड्स आपको बनाना है. आप जब यान लेते हैं DR परसेंटेज अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में बनाने शुरू कर ले, तो जो कस्टमर से आपका डिविएशन रेट कम आ रहा है, आपका फैब्रिक अपीयरेंस उसका बहुत अच्छा आने वाला है. सो ये भी बहुत कम यूज़ करते हैं लोग डिविएशन रेट, बेसिकली फॉर जापानीज मार्केट. इफ यू आर सेलिंग इट टू जापान, वो डिविएशन रेट मांगने वाले आपसे. सो ओनली फॉर दोज कस्टमर दे गिव डिविएशन, अदरवाइज दे डोंट. बट आप भी देख सकते हो, मतलब अगर आपका फैब्रिक अपीयरेंस अच्छा कर रहा है तो आज देख के इमीडिएटली आपको ये नहीं करना है ये डिविएशन रेट. लेट्स ऑब्जर्व फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन का आपका पुराना डेटा ले लो और आप कोरिलेट कर सकते हैं अपने फैब्रिक के साथ. तो आप देखोगे जिसका डिविएशन रेट कम हो रहा है उसका फैब्रिक अपीयरेंस आपका अच्छा आएगा. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द अगेन डेफिनेशन पार्ट. And coming to imperfection, I don't think I have to tell about imperfections. High imperfections, you can see the diagram and the fabric appearance. High imperfection, definitely it will have impact on your fabric, that is for sure. Similarly, hairiness, a very important. Hello. Hairiness. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका हेयरनेस, बिकॉज आपका एयर जेट वीविंग में अगर हेयरनेस नहीं है तो यान नहीं चलना है, ज़्यादा आ गया तो पिलिंग हो जाना है. सो जो भी हेयरनेस आ रहा है इस पर तो कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है आपके हेयरनेस में. सो अभी विद बूस्टर वी आर नॉट ओनली गिविंग द OH वैल्यू, हम लोग हेयरनेस HL सेंसर और एक इंट्रोड्यूस किया है जिसमें मतलब 3 mm फाइबर कितने हैं आपके पास, प्रोटीन फाइबर्स कितने हैं, 1 mm कितने हैं, 2 mm कितने हैं, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है. मैनी टाइम्स ओनली आई मीन OH इज़ वेरी इजी टू, मतलब आपको अगर बायर के साथ आपके यान सप्लायर के साथ अगर डील करना है बहुत इजी है OH आपका. बट अगर आपको इन डेप्थ जाना है तो वो HL में आपको इंडिविजुअल बता देगा कि पर 100 मीटर में 3 mm के कितने फाइबर्स हैं, 6 mm के कितने हैं, 8 mm के कितने हैं, एवरीथिंग विल गिव, दैट विल गिव इन डिटेल्स. सो इफ हेयरनेस इज नॉट कंट्रोल्ड देन डेफिनेटली फैब्रिक में आपके नेप्स आने वाले हैं. फिर आपकी वीविंग परफॉर्मेंस,
पे इम्पैक्ट कर सकता है। अगर हेयरनेस ज़्यादा है तो अगेन लूज फ्लाइज बनेगा तो डिपार्टमेंट ख़राब करेगा आपका, इट्स ग्रेट प्रॉब्लम। एंड देन फ्लाई कंटेमिनेशन ऑफ वीविंग एंड निटिंग मशीन्स, अगर आपके लूज फ्लाई के कारण बहुत सारा पूरा मतलब आपका हाउसकीपिंग को ख़राब कर सकता है। हाउसकीपिंग ख़राब किया, कंटामिनेशन बीच में घुस ही सकता है, कुछ तो दूसरा कलर का कुछ चल रहा है वो आ गया घुस गया, एंड देन इट कैन आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। फैब्रिक अपीयरेंस बारें, फॉर एग्जांपल हेयरनेस, आपने एक लॉट लिया और एक बॉबिन में अगर कहीं पीछे से हेयरनेस ज़्यादा आ गया, सो बारे जो आता है इट्स नॉट ऑलवेज ऑन द फाइबर। मेन क्या आता है, बारे अगर आ रहा है तो हमको लगता है फाइबर का है, बट इट कुड बी यार्न ऑल्सो। अराउंड 30% ऑफ प्रॉब्लम आर बिकॉज ऑफ द यार्न। तो यार्न का ट्विस्ट, यार्न का काउंट, यार्न का हेयरनेस, यार्न का CVM, ये सब आपके बारे का इश्यूज बना सकता है। सो द थिंग इज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड अराउंड 30% कंप्लेंट्स, अगर हम पूरे कंप्लेंट्स को अगर हम लोग पूरा एक जगह ये करें, सो अराउंड 13% ऑफ कंप्लेंट्स आर ड्यू टू हेयरनेस। Okay, so some of the reports of hairiness which you can see, as I said, only parameter text values are not going to give you full details. आप जब रिपोर्ट्स मांगते हो, कभी आप अगर ऐसे रिपोर्ट्स मांगोगे, फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एकदम से दिख रहा है कि आपका हेयरनेस शिफ्ट हो चुका है, बट आप रिपोर्ट देखोगे तो एक थोड़ी देखने वाले, आप एक 10 बॉबिन टेस्ट किया, आप हाँ एवरेज देख लिया ठीक है, बट यहाँ इमीडिएटली आपको पकड़ में आ जाता है कि उसको डिविएशंस और हाई डिविएशंस आ रहे हैं हमारे मटेरियल। सिमिलरली एज आई सेड फॉर HL सेंसर, जो हर 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm हर एक का कितने प्रोटीन फाइबर्स है पर 100 मीटर, ये आपको इंफॉर्मेशन। तो ये HL सेंसर जो है ये एक एलॉबरेट ये देता है आपको कितना हेयरनेस। Next, I don't know how many people are using slub yarn. Slub yarn भी आता है आपके पास, slub yarn की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो इवननेस टेस्टिंग से फैंसी yarn प्रोफाइल अगर किसी के पास है तो वहाँ भी हमें पता चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट गोइंग टू टेल फॉर ऑल द पैरामीटर्स, सिर्फ 2 पैरामीटर बात करूँगा, मास डिक्रीज लेफ्ट एंड मास डिक्रीज राइट। ये क्या होता है, आप जब स्लब तैयार करते हैं तो ड्राफ्ट बढ़ाते हैं कम करते हैं, तो एक्सलेट करते हैं और धीरे से, तो उस वक्त जब स्लब तैयार होता है ना, तो स्लब जैसे ख़त्म होता है उस वक्त उसको झटका लगता है और एक थिन प्लेस तैयार होता है और दोनों आगे पीछे तैयार होता है। तो हम ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपका मास डिक्रीज लेफ्ट और राइट कितना है पर किलोमीटर, तो ये अगर बढ़ा हुआ है तो आपको परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आने वाला है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ सेपरेट फैंसी yarn प्रोफाइल। इसके बाद और भी है, आई हैव नॉट ब्रॉट इन, हमारे पास मॉड्यूल्स है OM मॉड्यूल्स, ऑप्टिकल मल्टी फंक्शन, जिसमें डायमीटर, डेंसिटी, वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, बिकॉज ये आपको बहुत ही आने वाला है। सो मेन है जो टेस्टिंग्स करते हैं आप लोग, यहाँ पे RH कंडीशंस कैसा है, जब आप कंपेयर करते हो तो आपके मैच नहीं होते। आप देखोगे यहाँ पे 65% RH बोला है, जैसे बट टेम्परेचर बढ़ रहा है, मॉइस्चर बढ़ रहा है हवा में, और मॉइस्चर बढ़ रहा है मतलब आपका विस्कोस हो या कॉटन हो, ये मॉइस्चर खींचने वाला है, तो मॉइस्चर ज़्यादा खींचेगा। अगर टेम्परेचर कम है तो RPM कम है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया 65% है, लेकिन सो आपका वेरिएबिलिटी रहेगा ही रहेगा ज़्यादा इसमें। आप अगर देखोगे जैसे जैसे ही आपके RH बढ़ रहे हैं, सो थिंग्स आर चेंजिंग, सो you will have impact on elongation. You can see the percentage change in this the values जो match नहीं करेगा आपके result के साथ. So these are the tests. Test speed का influence already I spoke about it, because speed बढ़ेगा तो कैसा बढ़ेगा आपका. This is what it is. Similarly, even imperfections में RH के कारण आपके results में variations आने. So you will not be able to conclude the problem is in the yarn or in the climate condition.
So one has to keep the climate condition in control. Last is the Classimet. अभी भी मार्केट में Classimet 3 चल रहा है reports, but we have Classimet 5 in the market, and there is always again collusion between them. So if you take the Classimet values, they are, I mean Classimet 3 value जैसे यहाँ पे क्लास देखेंगे A1, which will have impact on your fabric appearances. अब Classimet 5 में अगर चेक करेंगे आप, तो यही A1 वैल्यू आप देखिए, वहाँ पे 71 था, अभी यहाँ पे हो गया 500. So ये सोच के क्या करते हैं हम लोग, यान बोलते नहीं यार यान तो खराब है, इतना क्लास आ रहा है. It's not like that. आज से 50 साल पहले जो टेलीस्कोप बने थे, जिससे हम लोग मून देखते थे, और आज की जो टेलीस्कोप है, मून तो वही है, लेकिन हमारी टेलीस्कोप बढ़ गई है, कैपेसिटी बढ़ गई, हमको और ज़्यादा दिख रहा है, हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. सो यहाँ जो वैल्यू दिख रही है, दिस इज सेम यान, बट हमारे ये चेंज, हमने हमारी बेंचमार्किंग चेंज करनी है. ये सोच के डरना नहीं है, फैब्रिक वही वैसे दिखने वाला है, बट स्पिनर्स दे हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव. एक दिन में नहीं होना है, ये सालों लगता है. सो ये एक चीज़ है Classimet में. वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑफ द मेजरमेंट्स. एंड और एक Classimet में अब एक ये है कि हम लोग Classimet में सम वैल्यूज यूज़ कर सकते हैं, बट नाउ डेज हमारे पास यान बॉडी प्रिंसिपल्स है, जिससे हमको समझ में आता है कि किधर कहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. ये दो डिफरेंट काउंट है, ये 30 ये सॉरी ये 50s का है, 50s कॉम्पैक्ट है, एंड दिस इज 30s कार्डेड है. सो हम लोग ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया को हम लोग बोलते हैं हमारे ऑब्जेक्शनेबल्स है. बट विद द न्यू Classimet 5 हमें पता चल जाता है, इवन इफ आई शो यू द नेक्स्ट स्लाइड, इवन वी सी दिस इज एन ऑब्जेक्शनेबल, दिस इज एन ऑब्जेक्शनेबल, ये H1 के पास. सो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम देखते नहीं थे आज तक, अभी हमको दिखता है, समझ में आता है विद दिस कि ये चीज़ आ रहा है. फैब्रिक में तो दिखेगा ही, बट अर्ली जनरेशन वॉज नॉट पॉसिबल टू फाइंड इट आउट. फाइन. एंड कंटामिनेशन इश्यूज रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है क्या मिक्सिंग है, कुछ मिक्सिंग है, नोबडी नोज क्या मिक्सिंग चल रही है. यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं, यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए और यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, कोई वैल्यूज नहीं, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन देखने से समझ में आता है ये जो मिक्सिंग है बहुत ही रिच मिक्सिंग है. यहाँ पे बेसिक कंटामिनेशन बहुत कम है, यहाँ ज़्यादा है तो फैब्रिक भी दिखेगा, यहाँ कम है तो कम दिखेगा. तो कंपेयर, अगर आपने 10 जगह से मशीन लिया, एक रिजल्ट देखा, आपको समझ में आ जाता है कंटामिनेशन लेवल कहाँ पे कैसा है. देन द लास्ट वन इन Classimet इज अफेक्टेड शेयर. यहाँ पे हम लोग U परसेंटेज, CV परसेंटेज, इम्परफेक्शन, हैरेनेस ये देते हैं, बट ये UT से इवननेस टेस्टिंग के साथ कंपैरिजन नहीं है. इसका आइडिया है, इवननेस टेस्टिंग आप 4 किलोमीटर टेस्ट करते हैं, Classimet 100 किलोमीटर्स. डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी इज अबाउट कंसिस्टेंसी. आप 4 किलोमीटर टेस्ट करके, आप लॉट इंस्पेक्शन करके आप बोल सकते हो पूरा का पूरा इतना टन माल आपका ठीक है. ऑफकोर्स पूरा का पूरा मैं पूरा आपका 100 टन टेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, बट अगर 100 किलोमीटर करूँ तो मुझे पता चल जाएगा वेरिएशंस क्या है. तो मुझे यहाँ पे अफेक्टेड शेयर में पता चलता है कि मेरा CV जो है एक पर्टिकुलर बैंड के अंदर है कि नहीं, या एक्सीड कर रहा है उसको. इम्परफेक्शन एक पर्टिकुलर बैंड के अंदर है कि नहीं. तो ये अफेक्टेड शेयर जैसे यहाँ पे बोल रहा है 4%, ये अगर 10% हो जाए मतलब मेरा मटेरियल खराब हो रहा है. तो ये जान सकते हैं आप इससे Classimet 5 से, अपार्ट फ्रॉम जस्ट मैट्रिक्स यूज करके. ओके, द लास्ट इज ओनली स्टैटिस्टिक्स, 2 स्लाइड्स ओनली. ओके, आप लोगों में से कितने लोग यूस्टर स्टैटिस्टिक्स के बारे में नो हुआ ना? रिक्वायरमेंट बूस्टर स्टैटिस्टिक्स. बूस्टर हर 4 साल में एक स्टैटिस्टिक्स लेके आता है मार्केट में वर्ल्ड वाइड, जिसमें आपको, और ये मोबाइल में मिल जाता है. आपको पहले बुक छपती थी, आजकल मोबाइल में आता है. आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट ब्रिंग इट एंड आप रजिस्टर करके लॉग इन कर दो, और आपको आपका जो मटेरियल ले रहे हो आप कौन से लेवल पे उसमें जो मटेरियल, मतलब हम नहीं बोलते कि मतलब 5% मतलब क्या है, वर्ल्ड के सिर्फ 5% लोगों ने ये क्वालिटी अचीव की, मतलब बहुत ही अच्छी है. तो वो जरूरी नहीं है. आप जो ले रहे हो मटेरियल, वो फॉर एग्जांपल मेरा माल अगर 50% माल में खपता है अच्छा, तो मुझे 50% ही चाहिए हल्का. तो मेरा 50% वाला टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं, तो ये बूस्टर स्टैटिस्टिक्स से आपको पता चल सकता है. सो इट्स ऑन द मोबाइल, आप इजीली इसको ये कर सकते हैं. सो विद दैट आई थिंक आई विल close for today. So if you have any questions, just let me know. को हमारे लिए जो रेलेवेंट है
उसमें आपका गाइडेंस चाहिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय फ्रेंड्स हियर, आप लोग को जो भी क्वेश्चन रहेंगे प्लीज़ पूछिए इनसे। आपको एक आई जस्ट शेयर वन इनसाइट विथ यू। हम लोग को इतना टेक्निकल नहीं समझता है। हमारे यहाँ पे जब इचलकरंजी में 2013-14 में 1000 RPM के लूम आए थे पिकेनॉल के, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखते टाइम लिखते हैं कि मशीन इज केपेबल ऑफ रनिंग एट 1000 RPM सब्जेक्ट टू यूजिंग कॉम्पैक्ट यार्न एंड पर्टिकुलर साइजिंग एंड पर्टिकुलर प्रिपरेटरी। यहाँ पे चठार साहब बैठे जो इचलकरंजी के सबसे बड़े साइजर है, इन्होंने ही पहले साइजिंग शुरू करी थी 1000 RPM के मशीनों के लिए। जब पिकेनॉल वाले यहाँ पे आए देखने के लिए, हमारे यहाँ के लूमों पे 40 कार्डेड का धागा अच्छी साइजिंग होके 1000 RPM पे 90% एफिशिएंसी पे चल रहा था। ओके। अगर हमारे व्यूअर ने टेक्निकली बहुत कुछ पढ़ा होता तो शायद वो 40 कार्डेड 1000 RPM पे चला के सक्सेसफुल नहीं कर पाता। तो हमारा जो टेक्निकल इग्नोरेंस है वो काफी हद तक हमारा एडवांटेज भी है। ओके। बट हमारे को आपसे गाइडेंस चाहिए कि वो क्या 3-4 पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हम लोग वीविंग में सिर्फ एक CSP देख लेते हैं। हाँ। बहुत कम लोग हैं जो IPI देखते हैं या हेरीनेस देखते हैं या RKM देखते हैं। एंड हाउ इट अफेक्ट्स द साइजिंग परफॉर्मेंस, हाउ इट अफेक्ट्स द लूम वेफ्ट ब्रेकेजेस। सो वी वांट सम गाइडेंस फ्रॉम यू इन दैट रिगार्ड। एंड आई वुड रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स, प्लीज कुछ पूछेंगे तो सर बता पाएंगे अपने को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने जो ये रखा है, क्वेश्चन रखा है कि विद द CSP आपका मतलब हो जा रहा है। अच्छा, एनीहाउ दिस इज नॉट यूज्ड एनीमोर। सो इन डेप्थ अगर आपको देखना है, मतलब अगर ऑफ कोर्स हमारे इंस्ट्रूमेंट पे CSP भी आता है, बट हार्डली कोई यूज करता है उसको टेंसर रैपिड में। सो मोस्टली दे गो विद द लोकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें CSP आपको मिल जाना है। बट हमारे इंस्ट्रूमेंट से अगर कुछ देखना है, सो एज आई से परसेंटाइल वैल्यू 0.01 परसेंटाइल वैल्यू जो है वो देखना है, उसमें कितना आ रहा है आपको। एज आई सेड दैट इज कोरिलेटिंग डायरेक्टली विद योर वेफ्ट इंसर्शंस। ओके, सो जब आप टेंसोजेट पे नंबर ऑफ टेस्ट, एज आई सेड आपके ब्रेकेजेस कितने बहुत कम रहते हैं, तो मैं सिर्फ अगर 5 मीटर्स पर मिनट के लिए करूँगा, हाउ मच ऑफ टेस्ट टेंसर रैपिड कितना टेस्ट करूँगा मैं? 100 टेस्ट। 100 ब्रेक्स मीन्स 50 मीटर। हम लाख मीटर में बात कर रहे हैं। लाख मीटर में आपके पास कितने ब्रेकेजेस आते हैं, और मैं 50 मीटर करके कैसा आई कैन नॉट गिव एनी रिजल्ट ऑफ। सो टेंसर रैपिड इज नॉट हेल्पिंग यू। सो दैट इज व्हाई टेंसोजेट कम्स इनटू द पिक्चर, वेयर यू टेस्ट 10,000 ब्रेकेजेस एटलीस्ट। मतलब जब एनहांस करते हो तो आप शायद वो वीक प्लेस को पकड़ सकते हो, चांस बढ़ जाता है हमारा कि वो वीक प्लेस को पकड़ने का। सो इसमें आपका स्कैटर प्लॉट जो आता है, स्कैटर प्लॉट में आपको दिख जाता है, आप 1-2 रहेगा, एक पूरा स्कैटर प्लॉट इधर है और एक बंदा इधर कोने में है, तो ये अगर ऐसे रिपोर्ट्स में अगर ऐसे दिख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा इसका परफॉर्मेंस खराब होने वाला है। तो वीक प्लेस, सो वीक प्लेसेस ये आपको इससे पता चल जाएगा इसमें। सो एज फार एज टेंसाइल टेस्टिंग इज कंसर्न, CV वैल्यू, परसेंटाइल वैल्यू, ये आपको देखना है डेफिनेटली। और अगर जब कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ तो Q95, फिर वहाँ का टेम्परेचर कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन का में टेस्ट किया है, बिकॉज हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। आपने 45 RH में किया और दूसरा एक 65 RH किया, जहाँ 65 RH किया वहाँ पे वैल्यू बढ़ जाएगा, जहाँ 45 किया वहाँ वैल्यू कम हो जाएगा, एंड आप मिसगाइड हो सकते हो इसमें से। सो एज फार एज टेंसोजेट इज कंसर्न, दिस इज व्हाट। UT3 में डेफिनेटली CV 10 मीटर, अपार्ट फ्रॉम CV जो देख रहे हैं आप, CV 10 मीटर आपको देखना है डेफिनेटली। CV बिटवीन देखना है आपको, बिकॉज ये आपका फैब्रिक अपीयरेंस में आना है। एंड एज फार एज क्लासिमेट 5 में अगर आ जाते हैं, सो आजकल एक ऑप्शन आ गया है आउटलेयर्स। मतलब हमारी एक यार्न डिस्ट्रीब्यूशन, यार्न बॉडी जो बोलती है एक डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, उसमें से जो ऑब्जेक्शनल फॉल्ट्स होते हैं वो अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक वाइट शर्ट पहनी है, तो वाइट शर्ट में मेरा पेन अगर लीक हो जाए, यहाँ पे एक ब्लू स्पॉट बन जाएगा और दूर से दिख जाएगा एक ब्लू स्पॉट। अब सर ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, उसमें अगर 10 स्पॉट भी दे दूँ तो दिखने नहीं वाला है। तो इस कहने का मतलब ये है, इट डिपेंड्स कि मेरा मटेरियल कैसा है और उसमें जो इवेंट आ रहा है वो कितना अलग है
मतलब पूरा एक जो डिस्ट्रीब्यूशन से सभी लोग हमारे यहाँ एक वाइट शर्ट वाइट पैंट पहन के आए तो हमको समझ में आता है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। वहाँ पे एक बंदा रेड टी शर्ट पहन के आया दूर से दिखता है, दैट इज नॉट फैब्रिक अपीयरेंस, राइट। फैब्रिक अपीयरेंस में जब आप देख करते हो मैनुअल इंस्पेक्शन तो वो देखते देखते समझ आता है ये हटके दिख रहा है। तो क्लासीमेट में भी जो आउटलेयर वाला फंक्शन है वो हटके वाला इवेंट को अलग से पॉइंट आउट कर देता है। सो आउटलेट्स कितने हैं तो उसमें भी आउटलेट्स अगर देखेंगे तो आपको फैब्रिक अपीयरेंस में ये होगा। और दूसरा उसका जो यान बॉडी है, यान बॉडी का शेप ऐसा है 30 काउंट, लेट से एक यान बॉडी ऐसी है और दूसरी यान बॉडी ऐसी आ रही है। शेप की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लेमैन। तो जिसकी यान बॉडी एकदम शार्प हो रही है उसका फैब्रिक अपीयरेंस अच्छा है होगा। सो मेरे पास अगर दो यान है 30 कॉम्पैक्ट और मैं दोनों का अगर मैं यान बॉडी कंपेयर करूंगा जिसका ज़्यादा फ्लैट हो रहा है दैट विल गिव मोर। सो दीज आर द न्यू थिंग्स व्हाट वी हैव टू ऑफर अपार्ट फ्रॉम जो आप पहले सीवी और ये सब चल रहा था इसमें। क्वेश्चंस? या वेरी गुड आफ्टरनून सर। जैसा सर ने पूछा थोड़ा सा पॉइंट आउट करता हूँ, जो शायद कहीं ना कहीं परसेंटाइल वैल्यू अगर चेक करेंगे तो बहुत सैंपल्स चाहिए, कभी 10,000 20,000 1 लाख, मतलब जितना टेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको रिफाइन कर पाएंगे। हम लोग जो यहाँ प्रोसेस करते हैं बेसिकली चाहे साइजिंग हो चाहे वीविंग हो तो वी आर वेरी स्पेसिफिकली हम लोग उतना टेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं तो CSP के रेफरेंस में देखते हैं कि CSP यान का क्या कहता है। देन देयर इज सेकंड थिंग, हो सकता है सिंगल यान स्ट्रेंथ टेस्ट कर लो। अब जो सिंगल यान स्ट्रेंथ भी है देयर इज अगेन द लिमिटेशन। अगर मेरा साइजिंग है एंड इफ आई एम पिकिंग 10 सैंपल्स, मैं उसको 10 जगह से तोड़ता हूं, फिर मैं उसका सिंगल यान देखता हूं, देन आई एम चेकिंग द लॉस इन इलोंगेशन। अब गेन इन स्ट्रेंथ एंड लॉस इन इलोंगेशन को गिवन दैट आई एम फीलिंग कि साइजिंग ने बेस्ट कर दिया है, फिर भी यहाँ पे जब निकुंज साहब के बीम जाती है देन जैसे यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, वही तो बोल रहा हूं, सही नहीं आया है, वही तो बोल रहा हूं। अच्छा, अब हजारों सैंपल प्रैक्टिकली, मतलब अगर मैं हजारों सैंपल टेस्ट करूं तो शायद मैं साइजिंग बंद करके सैंपल ही टेस्ट करूं दिन पर। तो समवेयर वी आर लुकिंग कि शॉर्टकट क्या है और किया कैसे जा सकता है। मतलब एक आप कुछ एक बेसिक इनसाइट की। नहीं, मैं वही बोलता हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, वेरी फ्रैंकली एवरीबॉडी नोज। अब आई एम ट्राइंग टू कैच होल्ड अ इवेंट व्हिच हार्डली कम्स एट, जैसा आपका ब्रेकेजेस आते हैं बहुत देर में आता है एंड इट कॉस्ट यू अ लॉट। आपका जब रुकता है मशीन, जब स्टॉप होता है, अब उसको पकड़ना है, मैं सिर्फ 50 मीटर चेक करके मुझे नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू इंक्रीज योर सैम्पलिंग। टेंसो रैपिड में सैम्पलिंग बढ़ा ही नहीं सकते हो। 750 ब्रेक एक घंटे में आप कितने देर चला दोगे टेंसो रैपिड, कितने देर चलाओगे और रिजल्ट आएगा तब तक तो आपका बीम भर के निकल जाएगा आगे। सो दैट इज व्हाई टेंसो जेट कम्स इनटू द पिक्चर, जो सैम्पलिंग जिसका बहुत ज़्यादा है, हाई स्पीड है एंड इट इज क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट ऑल्सो। टेंसो रैपिड एज आई सेड 5 मीटर्स पर मिनट धीरे से लगाएगा, धीरे से आएगा। और आप अगर टेंसो जेट देखे हो तो वो जैसा आपका मतलब वीविंग मशीन के पास खड़े ऐसा लगेगा, ऐसा मतलब कंटिन्यूस चलते रहेगा वो हाई स्पीड में। सो इट इज क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट सो दैट इट कोरिलेट्स विथ योर व्हाट यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम। And CSP, what I say again, if you don't have anything, that is the only best thing what you have. So, for example, I definitely, if you go to a doctor, you say, आप stethoscope है, stethoscope से देख लो, मेरा heart, I have a heart problem, can you do the stethoscope? हाँ, blocking दिख रहा है मुझे. So, you have to have the latest equipments आ रहे हैं, वर्ल्ड में है सब, तो हम जाते हैं, नहीं भाई, इको कर लो एक बार, पता चल जाएगा क्या है. So, the more the information you get, more the quick reactions you have. प्रॉब्लम क्या है आजकल, आपका रिएक्शन टाइम क्या है, जितना डिले करोगे उतने लॉसेस है आपके लिए. यस हेलो सर. या सर अभी आपने जो भी बताया वो सारी यान 1 रिलेटिव टू यान 2 या अपन कंपेयर कर सकते हैं. यस करेक्ट. यहाँ पे एक सिंगल यान है, उसका जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, इनका इम्पैक्ट वीविंग पे कैसे होगा? आई मीन बेसिक यहाँ पे क्या चलता है कि ये यान मेरे 1000 RPM पे चलेगा या नहीं चलेगा, या 1100 पे चलेगा नहीं चलेगा. अब इसको 1100 RPM का मतलब कितना फोर्स लगना है उसके ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग वो यान कितने RPM तक चल सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए. अभी तो रिलेटिव हमको समझ में आ गया, यान ए इज बेटर देन यान बी, बट यान ए है मेरे पास. ओके, वो कितना दैट्स व्हाट आई वाज इनिशियली, मैंने आपको पूछा कि आपके मशीन मैन्युफैक्चरर्स आपको बताते हैं
पर्टिकुलर मटेरियल पर्टिकुलर काउंट, इसके लिए कितना मैक्सिमम फोर्स इसका आ सकता है। यू सिंपली कैनॉट, मतलब उसको किसी चीज़ को ज़बरदस्ती आप चला नहीं सकते हो। आप चलाओगे तो आप अभी आप ट्रायल एंड हिट एंड रन से चला रहे हो मोस्ट प्रॉब्ली। ओके, ये करके देख लो। तो व्हाट आई वाज शोइंग हियर, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको, सॉरी इट्स वेरी, बहुत पीछे गया ये, ऑलमोस्ट राइट। तो ये जो है, ये पहला वाला जो ग्रीन कलर का हिस्टोग्राम दिख रहा है, ये मुझे मशीन मैन्युफैक्चरर से आपको बताया गया होगा कि ये इस पे इतना मिलेगा आपको। ओके, नाउ व्हेन आई नो दिस, मैं जब यान प्रोक्यूर कर रहा हूँ तो आप बताओगे, या तो आपका एक्सपीरियंस वैल्यू रहता है, अभी तो आपका एक्सपीरियंस वैल्यू रहता है, इतने में चलता है। बट अगर आपको कुछ नया चीज़ आ रहा है, नया कुछ बना रहे हैं आप, तो आपको ये पता रहता है कि मेरा इतना लोड, एवरेज लोड है और मैक्सिमम लोड इतना जाने वाला है। तो मेरा जो यान आएगा उसका मिनिमम इससे ऊपर रहना चाहिए भाई, इसके साथ कोलाइड नहीं होना चाहिए। कोलाइड होगा तो ब्रेकेजेस होने वाले हैं। ये वैल्यूज हम लोगों ने उनसे एक्सपेक्ट करने चाहिए। यस, यू हैव टू फाइंड इट आउट बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम द मशीन। वी कैनॉट गिव इट, डिफरेंट मशीन्स विल डिफरेंट, उनका लोड कितना दे रहे हैं वो लोग बताएंगे आपको। और या तो आपका एक्सपीरियंस वैल्यू दैट प्लेस उसमें पर, वो तो आप लोग बहुत, हाँ, आप ऑलरेडी आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उसी पे आप चल रहे हो एज ऑफ नाउ आपका। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, मैं पूछ रहा था, जैसे अपने यहाँ पर मशीन डिफरेंट टाइप का है, 800 RPM का है, 1000 RPM का है, 1200 RPM का है, सबने दिया होगा डायग्राम, मतलब कोई मशीन लाता है उतना देखता नहीं। हाँ, ऐसा कुछ जैसे आजकल डॉक्टर्स के रिपोर्ट आते हैं जो टेस्ट कराने के, भाई ये मिनिमम है, इससे बढ़िया है तो आपके ठीक हो। हाँ। हम एक रिपोर्ट देख के ही अपने आप Okay. जांच कर लेते हैं। ऐसा Yes. कुछ 800 RPM के लिए ये पैरामीटर्स देखना चाहिए, 1000 RPM के लिए ये देखना चाहिए, 1200 के लिए ये देखना चाहिए, ऐसा कुछ मिलता है तो हम आपके टेस्टिंग का रिपोर्ट लिया और उसमें चेक कर लिया, भाई ये यान, हाँ ये 800 तक चलेगा, ये 1000 तक चलेगा। ये एक जनरल एक ये है, मैं मतलब आई जस्ट मूव फास्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। स्टडीज विद वीविंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग हैव शोन दैट वीक प्लेसेस विद टेनासिटी लेस देन 4 सेंटीन्यूटन पर टेक्स अगर आ रहा है, हाँ, और सिमिलरली एलोंगेशन लेस देन 2%, तो आपका प्रॉब्लम आएगा। बट अगेन आप CSP करोगे और टेंसोरबिलिटी करोगे तो ये पता नहीं चलना है, क्योंकि आप वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को तो आप टेस्ट ही नहीं करते हो, तो आपको पता नहीं चलेगा। सो आप, मेरे हिसाब से आपका प्रॉब्लम कहीं तो भी, कहीं बहुत छोटी जगह कहीं तो भी बॉडी पे है, और मैं एक जगह कहीं तो भी देख ले बोल लूँगा नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू रियली सर्च, और उसके लिए आपको एक्सक्लूसिव हाई वॉल्यूम टेस्टिंग करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। CT स्कैन जो बोलते हैं ना, पूरा CT स्कैन किया तब पता चलता है। पैरामीटर साथ में देखो, ये आने से ये चलने वाला है। ओके, आप थोड़ा सा ऐसा कुछ हो सकता है क्या पॉसिबल है भाई, लूम वाइज जैसे रैपियल लूम कम RPM पे, वो RPM में चल जाता है, वो एयरजेट पे चलता नहीं, तो आपको ये आइडिया नहीं I got you. कौन सा पैरामीटर कौन सा पर स्पीड तक चल सकता है। ये जो भी हमको मिलता है, मैं तब उस जो यान परचेस किया, समझिए कम आ गया, 1200 में चल नहीं रहा, मैं उसको 800 RPM में शिफ्ट कर दूं, तो फिर हमारा वो यान काम आ जाए, चल जाए। ले तो लिया हमने यान, हाँ। अब यान का करे क्या, वो डाल दिया 1200 RPM में, वो चल नहीं रहा है, वो यान कोई बार उसमें प्रॉब्लम कर रहा, बोले चल नहीं रहा। तो आप ऐसा कुछ दे सकते हो बाजू में, भाई ये 800 का पैरामीटर, ये 1000 का पैरामीटर, ये भाई 1200 का पैरामीटर, या हमने बोला हमने बोला 800 RPM के हिसाब से टेस्ट कर दो आपका पैरामीटर। जैसे आज मेडिकल टेस्ट करते समय आते हैं ना सामने, सर इतना आपका ग्लूकोज ये है लेवल, ओके, उसमें मेल फीमेल ही रहता है ना। अब यहाँ पे तो इतने सारे 800 1000 1200 कर दो, यहाँ पे तो फैक्टर्स होगा 800 में ये रैपियर मशीन में, ये मशीन में ये मटेरियल, ये काउंट, ये इसका इतना ट्विस्ट। नहीं, ये सर जैसे मैं 30 काउंट दे रहा हूं, 30 काउंटर का पैरामीटर आ जाएगा, अभी 80 काउंट देंगे तो 80 का पैरामीटर आएगा। योर रिक्वायरमेंट इज वेरी वैलिड, इट मेक्स योर लाइफ वेरी इजी अगर ऐसा आ जाता है। इसलिए जैसा हम लोग ऊस्टर स्टैटिस्टिक दिया हुआ है, आई एम जस्ट कमिंग टू ऊस्टर स्टैटिस्टिक्स, हाँ।
सो बूस्टर स्टैटिस्टिक्स लेवल क्या है? अगर आप पता चल जाता है, फॉर एग्जांपल कोई अगर 50% पे है और आपका कोई मटेरियल आया और उसका स्टैटिस्टिक लेवल अगर लेट्स से 75% है, मतलब बहुत ही आम चीज़ है, या 90% है, बहुत ही आम है, मतलब आम चीज़ तो सब बना लेते हैं, और अगर 50% है तो ठीक है, हाँ मतलब इस पे तो ये इससे अब पता चलता है। बट आप जो मांग रहे हो अभी एज सच कि एकदम से मुझे पता चल रहा है कि ये इस चीज़ में इतना रहना चाहिए, टेलर्ड मेड, एवरीथिंग टेलर्ड मेड, दैट इज स्टिल नॉट पॉसिबल, राइट मिस्टर प्रभु? So I think the expectations are very high from us, and we are happy that you are expecting so much from us. Definitely we take this opportunity to take it up to our Mr. Prabhu is already noting everything, so we will take up with Ooster if we can do it. Sir, you wanted to ask? Hello sir. Yeah, please. Hello, 1 minute. Okay. सर एक्चुअली क्या है, अभी इसने बोला कि ये स्पीड को ये पैरामीटर चाहिए, 500 को ये, 1000 को ये, 1200 को ये। तो एक्चुअली क्या है, कॉटन यार्न जो है वेरिएशन बहुत आता है। तो मैं बेसिकली स्पिनिंग से हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी मैं सुना सब साहब एकदम से पीछे देख रहे, स्पिनर है, चलो भाई। तो क्या होता है, फाइबर का कॉन्फिडेंस जो है, आज अभी बोल रहे हैं सब उसका क्रॉप अच्छा है, सब ये एरिया में अच्छा क्रॉप मिलता है, ये अच्छा मिलता है। हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि सब जगह से अच्छा क्रॉप लेके अपना मिक्सिंग अच्छा बना के बूस्टर स्ट्रेटेजिक हम बूस्टर अच्छा करें। और मेनली स्ट्रेंथ सीवी जो बात है, स्ट्रेंथ सीवी हम लोग मेंटेन करते हैं। बेसिकली आपने सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स बोले हैं वो तो आते ही है, लेकिन स्ट्रेंथ सीवी अगर हमारा अच्छा रहेगा तो यार वो हम गारंटी दे सकते हैं 100% अच्छा चलेगा। यही मेन बेस है। ये बोलो एज सच जो है टेंसर एप्टिट्यूड टेस्ट करके आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। बट एज आई सेड, आपका वीक प्लेस किसके लिए, क्या व्हाट आर द रीजन फॉर वीक प्लेस इन स्पिनिंग? एक स्प्लाइस हो सकता है बीच में, कभी तो भी तो ये कभी तो आप हर समय टेस्ट नहीं कर पाने वाले हो। हर समय टेस्ट नहीं, उसको रैंडम टेस्ट होता है, क्योंकि इतना केजी मटेरियल हर इतना नहीं हो सकता है। उसको रैंडमली 20 पॉइंट टेस्ट या 50 टेस्ट करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्प्लाइस का स्ट्रेंथ, स्प्लाइस हर डेली चेक करके उसको समझो 90% के बिलो आ गया तो वो मेंटेनेंस को लेते हैं। ये हमारी तरफ से वीविंग वालों को एक अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा हम लोग करते हैं। ओके, थैंक यू सर। Yes, sir. Hello, sir. Yes. Tensor Rapid versus Tensor Jet. Yeah. Tensor Rapid is the older version, Tensor is the newer version. Not like that. Okay. Not like that. Okay. I want to elaborate on that. Yes. Okay. See, both are two different instruments. Okay, used for two different purpose altogether. Tensor Rapid is universal. I mean, if I have a fabric, I can test fabric also in Tensor Rapid. If I want to test some industrial yarn with some, let's say you have some steel component also inside, I can do it. But Tensor Jet, it's only for staple yarn, high speed, and that is for basically weaving, which will, simulate the weaving atmosphere in the machines. So when you test, as I said, when you test 10,000 or 20,000 breakages, then आप कभी तो भी मतलब जो इवेंट्स कभी तो भी आते हैं उनको पकड़ने के चांसेस होता है। You just taking a small part. Tell me anything. Can you अगर आपको बोलूँ आप इवेंट्स टेस्टिंग कर रहे हैं, okay? How much do you test? 400 meter of yarn with 10 bobbins or 10 cones? Now if from tomorrow I say नहीं एक 100 मीटर ही चेक करता हूँ imperfection. You also, आप लोग के लॉट इंस्पेक्शन के लिए आपके लोग जाते हैं यार्न टेस्टिंग करने के लिए, और अगर वो सिर्फ 100 मीटर यार्न का imperfection देके बोलेगा, is it the correct sampling? It's not going to give you the correct picture. That is why for weaving yarn, to get the correct picture, you need to test a lot of, because these things are very rare, your breakages are very rare, but that is a pain for you. So we cannot say, okay, I can do a shortcut and say just by testing on a small amount of yarn it can foresee, okay, कितना इसमें ये रहेगा. It's not possible. Not theoretically, not analytically, it is not possible. Is it possible to share this presentation, sir? Yes, definitely. Just let me know. I think I can share with the organizing committee and then they can share, or you can send me your mail ID. I will
I can share. Thank you. So still you are having the Tensor Rapid also for Yes, yes. Both the instruments run together. UTR-5 and TensorJet 5. These are the latest generation. Some knitters, they will go for Tensor Rapid, but of late even knitters are going for TensorJet. High-speed knittings, so they also go for TensorJet. Thank you. Yeah. Anybody has any more questions? I'll just conclude it. हम लोग ने एक अच्छा, there's a question there. हेलो, एक सजेशन है मिस्टर सेन। हाँ जी बोलिए। अगर आप उस्टर की लैबोरेटरी यहाँ शुरू कर सकते हैं तो दैट विल बी मोर बेटर फॉर ऑल दिस पीपल्स, क्योंकि ये एनालिसिस बहुत बढ़िया उनको मिलेगा और ये टेक्निकली तरक्की के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो आई विल रिक्वेस्ट यू मीन टू से इचोकरंजी में एक लेबोरेटरी रहे कि सब लोग वहाँ पे जाके टेस्ट करें? या और वो आप मतलब उसका चार्ज कर सकते, चार्जेबल बेसिस। Okay, you want to see we run it? Yeah. Okay. We supply it, we run it. Okay. So that's an input. Sir, is there any machine which can miscalculate this number of contaminations in a yarn sample? Yes, Classimet. So it can give the contamination numbers? Yes. And the type of contamination? See, we had a very less time, so I cannot elaborate. Contamination on Classimet, when you test 100 kilometers of yarn, so it will tell you how many contaminants. It's just like in Classimet. I showed you that I showed you that classification of the dense area, blue color area, density of your classification, if you remember. So there we can understand how much contamination you have. So if your density is up to this area and the other cotton has a density in this area, the lower one is better, has less basic contamination. You will get figures also, just like Classimet. Any other questions? Yeah. So just I'll sum it up. एक तो somebody requested कि Ooster starts a lab here and they run it. अगर Ooster ऐसा करती है तो इनके सबसे बड़े दुश्मन स्पिनिंग मिल बन जाएंगे, क्योंकि ये स्पिनिंग मिल जो कर रही है वो आपको बता देगी, तो ये इनका जो धंधा है बंद हो जाएगा। और सेकेंड थिंग इज हम लोग को एज वीवर्स सेन साहब, हम लोग को एक जीपी डॉक्टर के पास जाने की आदत है, जो स्टेथोस्कोप से बेसिक बता देता है, 2-3 दवाई देता है, हम ठीक होके काम पे लग जाता है। हमको कोई स्पेशलिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की आदत नहीं है, जाना नहीं चाहते हैं। और आप वो न्यूरोलॉजिस्ट हो या कार्डियोलॉजिस्ट हो जो आप काफ़ी डिटेल में जा रहे हो, तो थोड़ा सा हमारे एक्सपेक्टेशन में और आपके काफ़ी बड़ा गैप है। एनीवे सेन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड द वंडरफुल प्रेजेंटेशन. Do share with us. People who are interested will take benefit of it. Thank you so much. I would like to thanks once again for your patience. आप लोग almost 1 घंटे से ज़्यादा, you can say, of course, as Mr. Nikunj said, the expectations and I can understand probably the parameter what we cater. It's totally different, totally new for you all most of the time. I think might have not आप लोग को जरूरत नहीं पड़ी होगी या जरूरत यूज नहीं किया है, बट एक बार आदत लग गई तो फिर आप छोड़ नहीं सकते. That I can guarantee you. So just एक बार आदत लगने की बात है, because we have these instruments in Raymond's, in Arvind, and now they have to definitely TensorJet. They cannot stay without TensorJet because it tells them easily what is happening for them. Okay. How informative the session was. Thank you so much, sir, for sharing such an immense knowledge with us. Every single individual must have surely gained a lot from it. You flashed upon a few points like difference in tensile testers, analyzing the statistical parameters, which was surely brilliant. Thank you, sir. On behalf of Yarn Expo and IFSMA, I extend a really hearty vote of thanks to our guests, Mr. Nikunj Badatia, sir, and Sandeep Sen, sir.
who have spared their valuable time for us to grace this occasion. It was an honor having you both, sir. I would also like to thank you, our coordinators, for their constant support and guidance. Last but not least, I would like to thank you all their participation and patient listening. Thank you all. Have a great day.